بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع سے رب جلیل کے نام سے جو میرا اور آپ کا پالنے والا ہے. درود و سلام ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پر الحمدللہ رب العالمین. دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ کچھ دنوں سے جب سے مصطفیٰ کمال نے ایک لمبی چوڑی ایک طویل عرصے کے بعد چارج شیٹ الطاف حسین کے خلاف پیش کی اور جو زبان اور جو لہجہ انہوں نے اختیار کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. ایک طویل خاموشی کے بعد بقول ان کے کہ وہ تمام شواہد اور تمام صورتحال کے وہ چشم دید گواہ تھے کہ یہ قتل کس نے کرایا. میری ماضی کی ویڈیو موجود ہے. میں نے باشگاف الفاظ میں ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل انہوں نے کرایا، جنہوں نے عظیم احمد طارق کو قتل کرایا، جنہوں نے ایس ایم طارق کو قتل کرایا، انہوں نے ہی ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کرایا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے بھائی کو، بیٹے نے باپ کو، بھائیوں کو کس طرح کیا اقتدار کے لیے اپنی مونوپولی، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اگر خونی رشتوں کو بھی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھایا جائے تو وہ چڑھانا عین عبادت ہے. یہ عالم اسلام کی تاریخ ہے. دوسری طرف اب انیس احمد ایڈوکیٹ میرپور خاص سے ان کا تعلق ہے. پرانے، یقیناً پرانے ایم پی اے بھی رہے اور پہلی دفعہ ان کو ایم پی اے شپ جو ملی وہ انیس احمد ایڈوکیٹ کو وہ ایم کے ہی پلیٹ فارم سے ملی. میں ان کے گھر میرپور خاص میں مجھے 2 دفعہ جانا حاصل ہوا. میں ان کے گھر 2 دفعہ گیا ہوں، میں انہیں جانتا ہوں. آج جس حساب سے مصطفیٰ کمال کے اگینسٹ اور لیکن حد ادب ملحوظ رکھتے ہوئے وہ مستقل مصطفیٰ کمال بھائی کرتے رہے. اور اسی طرح وہ الطاف بھائی کو بھی الطاف بھائی اور نہ صرف الطاف بھائی بلکہ ڈاکٹر انور کو بھی ڈاکٹر انور بھائی اور طارق میر بھائی. تو در حقیقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انیس احمد ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ایک جھوٹے فرد ہیں، جھوٹے آدمی ہیں. اور ان کی جو نیکسس تھا وہ ڈاکٹر انور اور طارق میر کے ساتھ. الطاف حسین کے پاس ایک طویل فہرست ہے ڈاکٹر انیس احمد ایڈوکیٹ کی. ڈاکٹر کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر وہ نہیں، لیکن ایک ان کی تمام تر ان کے معاملات کی وہ جس زمانے میں یہ لندن میں قتل ہوا وہ یہاں یہ لندن میں موجود تھے. انہیں بخوبی پتہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قاتل کون ہے، یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ایک ڈپلومیٹ اور ایک شاطر سیاستدان کے طور پر وہ کسی جگہ بھی اسٹینڈ لینے کو تیار نہیں، بلکہ ان کی نظر میں قاتل اور مقتول سب بھائی ہیں. یہ اسلام کی تاریخ کا المیہ کہ قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ. یہ ہماری تاریخ نے، ہمارے مورخین نے ہمیں یہی سبق پڑھایا کہ قاتل کو بھی رضی اللہ کہا اور مقتول کو بھی رضی اللہ کہا. تو انیس احمد ایڈوکیٹ کے حالیہ انٹرویوز جو نشر کیے جا رہے اس کی مثال صرف وہی ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ تھا اور مقتول بھی
रजी अल्लाह था। चूंकि अनीस अहमद एडवोकेट हर अमल में गर्दन गर्दन तक ये धंसे हुए हैं गुनाहों की दलदल में। आज ये अपने आप को पवित्र, अपने आप को बहुत ऑनेस्ट, इनकी ऑनेस्टी का सबसे बड़ा सबूत ये अनीस अहमद एडवोकेट का सबसे बड़ा सबूत ये है कि चोरों को छोड़ के डकैतों की पार्टी में तशरीफ ले गए। ये सबसे बड़ा इनकी पवित्री का और सबसे बड़ी इनकी हक परस्ती का सबूत अनीस अहमद एडवोकेट का ये है कि चोरों को छोड़ के डकैतों के साथ शमूलियत इख्तियार की। ये है महाजिर कौम के सपूत अनीस अहमद एडवोकेट। राह से अल्ताफ हुसैन के ताल्लुकात थे। अल्ताफ हुसैन के नेक्सिस को राह से कंट्रोल करने वाला, राह से हिदायत लेने वाला, राह से माल लेने वाला अगर कोई शख्स था तो उसका नाम डॉक्टर अनवर और तारिक मीर था। और इस बात को अनीस अहमद एडवोकेट जिस डिटाई और बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, इनको सब पता है। ये हर अमल के जिम्मेदार है और ये शामिले कत्ल थे। अनीस अहमद एडवोकेट को डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल से मुबर्रा आप करार नहीं दे सकते, क्योंकि ये उस वक्त दस्ते रास्त थे। डॉक्टर अनवर, डॉक्टर तारिक मीर, अल्ताफ हुसैन के दस्ते रास्त अगर कोई थे तो उनका नाम है अनीस अहमद एडवोकेट। जब तक माल ठीक मिल रहा था अनीस अहमद एडवोकेट अल्ताफ हुसैन के साथ रहे। जब उससे बड़ी साहूकार पार्टी एक जरदारी सब पे भारी, जब नोटों की बोरी, जब नोट डॉलरों का अंबार जरदारी ने उन्हें दिखाया, तो उन्होंने महाजिर कौम को सौदा करके महाजिर कौम की कमर में छुरा घोंप के अपनी मरात, अपने बिजनेसेस को, अपनी इको को जरदारी के हाथ भेज दिया। यह है महाजिर कौम के सपूत अनीस अहमद एडवोकेट। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्तफ़ा कमाल झूठा है, मुस्तफ़ा कमाल सच्चा है। सवाल ये है कि जब 2010 में ये अमल हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल क्यों खामोश रहे? उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल खड़े होते और बोलते कि ये गलत इक़दाम हुआ है। अनीस अहमद एडवोकेट से उम्मीद नहीं है, ये तो डॉलर और दरम और रियाल के पुजारी हैं। अल्ताफ हुसैन के पास जब उन्होंने देखा कि चंदे आना कम हो गए तो जरदारी की तरफ जमला दी। तो क्या अनीस अहमद एडवोकेट समझ रहे हैं कि ये महाजिर कौम जो है ये चे है, आप इससे चे बना लेंगे? आपकी तो सबसे बड़ा आपका सबूत ये है कि चोरों को छोड़ के डकैतों की अंजुमन में शामिल होकर आपने साबित किया कि आप करप्ट हैं। आपने साबित किया कि आप मफाद परस्त हैं। आपने साबित किया कि आप हक परस्त नहीं थे, मफाद परस्त थे। यह आपने साबित किया। जरदारी के साथ शमूलियत इख्तियार की। जरदारी मुझे बच्चों की तरह चीज लगे, जरदारी है तो अपनी वल्दियत में जरदारी का नाम लिखवा ले। बिलावल खुसरे का तो पता नहीं है कि बाप कौन है, आप लिखवा ले। अनीस अहमद एडवोकेट वल्दियत के खाने में जरदारी का नाम लिखवा ले, क्योंकि आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं। जरदारी साहब मुझे जेल में मिलने आते थे, मेरे उनसे पुराने ताल्लुकात थे। क्यों? कि आप सिंधी बोलते थे। जो हशर
महाजिर कौम का इस सिंध की नस्ल परस्त जरदारी हुकूमत ने किया। इस सिंध के साथ बशमूल सिंधियों के तह तेग कर दिया उसने। सिंधियों महाजिरों सबको तह तेग कर दिया और आप उसकी गोद में जाके बैठ गए। लानत हो आप पे अनीस अहमद एडवोकेट। आपको सब पता है कि मीरपुर खास का हाल क्या है। आपको सब पता है कि आज नवाब शाह खंडरात में तब्दील है। कराची और हैदराबाद मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का नक्शा पेश करते हैं। लानत है आप पर अनीस अहमद एडवोकेट। उसके बावजूद हक परस्ती का नाम लेने वाले, हक परस्ती का दावा करने वाले, लानत हो आप पर अनीस अहमद एडवोकेट। उसी तरह लानत हो जैसे मुस्तफा कमाल पे लानत हो, जो फौज की गोद में बैठ के फौज के जूते चाटने के बाद क्रिमिनल्स को अपने साथ मिलाकर अपने, लेकिन खुदा की लानत आप पे पड़, देख लीजिए कि कोई रोने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो यही हाल अनीस अहमद एडवोकेट तुम्हारा भी है। मैं फूल जैदी, तुम भूल गए मैं आया हूं तुम्हारे घर में खास। कितने बड़े तुम साहूकार थे, कितनी बड़ी तुम्हारी जमीनें थीं, कितना बड़ा तुम्हारा घर था, मैंने देखा है। मैंने देखा है। तो झूठों का बोलबाला, सच्चों का मुंह काला, ये चल रहा है पाकिस्तान में। जो फौज के टट्टुओं के जूते चाटे, उसका नाम है अनीस अहमद एडवोकेट। क्योंकि ये वो अंधा, ये वो गूंगा, ये वो बहरा शख्स है। मुस्तफा कमाल की हम क्या बात करें। मुस्तफा कमाल तो फौज की आशीर्वाद पे दुबई से तशरीफ लाए थे। मलिक रियाज उस वक़्त फौज की आंख का तारा, फौज के दुलारे, फौज के प्यारे थे। उन्होंने दूल्हा बनाया अनीस कायम खानी को, मुस्तफ़ा कमाल को, और मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खानी, कायम खानी शेरवानी पहन के पहुंच गए पाकिस्तान। लेकिन आपकी ये मुनाफकत अनीस अहमद एडवोकेट साहब, ये आप इस कौम को चैन नहीं बना सकते। आप एक मुनाफिक, कौम फरोश, झूठे, बददियानत आदमी हैं। आपको खूब अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर इमरान फारूक का कातिल कौन है। आपको यह भी बहुत अच्छी तरह पता है कि अजीम अहमद तारिक का कत्ल किसके ईमा पे हुआ। आपको यह बात भी खूब अच्छी तरह पता है कि एसएम तारिक को कत्ल किसके हुक्म पे कराया गया। लेकिन वह जाती मरात, जाती अय्याशियां, जाती फैसिलिटीज जो आप लेते रहे हैं एमक्यूएम से, डॉक्टर अनवर रा का एजेंट था, तारिक मीर रा का एजेंट था। और आप का मुंह नहीं थक रहा। डॉक्टर अनवर भाई, डॉक्टर तारिक मीर भाई, आपकी अच्छी मुनाफकत इख्तियार की है। मुस्तफ़ा कमाल भी भाई, अल्ताफ हुसैन भी भाई, सब भाई है। आप किसी को बटर लगाने में आपका सानी नहीं है भाई। आप क्रीम पॉलिश लगाने में आपने शहबाज शरीफ को भी, अनीस अहमद एडवोकेट, आपने पीछे छोड़ दिया। वो तो जबान से चाटता था, आप तो पता नहीं कहां कहां से चाट रहे।
तो दोस्तों और साथियों, एहलियान पाकिस्तान, एहलियान सिंध होशियार रहे। ये मुनाफिक है, ये झूठा है, और इसके झूठ की सबसे बड़ी दलील ये कि ये चोरों का कुनबा छोड़ के डकैतों के साथ शामिल हो। ये सबसे बड़ी दलील है कि ये झूठा, मक्कार, अय्याश और कौम फरोश अगर कोई है तो उसका नाम अनीस अहमद एडवोकेट है। मैं उम्मीद करूंगा एहलियान कराची, एहलियान हैदराबाद, ये मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी से भी बड़ा मुजरिम है। ये फारूक सत्तार, खालिद मकबूल से भी ज्यादा बड़ा मुजरिम है कि जिस कौम के लिए, जिस कौम ने इसको पहली दफा 2% का एडवोकेट था, इसकी हैसियत क्या थी? इसको MQM ने फर्श से अर्श पे पहुंचाया, अल्ताफ हुसैन ने। और ये कहां जाके मरा? बदनस्ल, जिसका ना मां पता ना बाप पता, आसिफ अली जरदारी, वो बीमारी जो इस पाकिस्तान को दीमक की तरह चढ़ गई। वो जरदारी जो पैदा करता है तो खुसरे पैदा करता है। उस खुसरो के फादर को इसने अपना बाप बनाया। उस शख्स का नाम है अनीस अहमद एडवोकेट। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो चूरन अनीस अहमद एडवोकेट बेच रहे हैं, इनसे पूछिएगा कि फूलजैदी तुम्हारे घर आए थे या नहीं आए थे। बहुत बड़े लीडर हो गए, बहुत बड़े लीडर। अब तुम्हें तो जानता कोई नहीं था। ये MQM थी, ये महाजिर तहरीक थी जिसने तुम्हें इज्जत बख्शी और MPA की सीट दिलवाई। ये MQM थी, ये अल्ताफ हुसैन था, ये अजीम अहमद तारिक थे जिन्होंने पार्टी बनाई। तुम्हारी तो हैसियत कीड़े मकोड़ों से भी बदतर थी अनीस अहमद एडवोकेट। झूठ बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि वो सच बन जाए। तुम उस मफरूजे पे अमल कर रहे हो, लेकिन ये कौम चे नहीं है। ये तुम जैसे तमाम नौटंकी, ड्रामेबाज, मफाद परस्त, खुर्दगर्ज, अपॉर्चुनिस्ट, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम 2% के 2 कौड़ी के आदमी हो इस वक्त, क्योंकि तुम जिस शख्स की गोद में जाके मरे वो खुद खुर्री चारपाई पे बम्बिनो सिनेमा के पीछे वाले रूम में पड़ा होता था, चरस की सिगरेटें फूंक रहा होता था। तो तुम्हें मुबारक हो, नए बाप आसिफ अली जरदारी की जिंदगी, उसके पीपल्स पार्टी। हम लानत भेजते हैं पीपल्स पार्टी पर। ये नस्ल परस्त, बेगैरतों, बेशर्मों, बेहयाओं, चोरों, डकैतों का टोला है जिसको पीपल्स, ये बेनजीर की पीपल्स पार्टी नहीं है। ये मफाद परस्तों, चोरों, उचक्कों, लुटेरों, डकैतों, मंशियात फरोश की पीपल्स पार्टी, जिसके तुम सपोर्टर हो। लानत हो तुम पर। इस उम्मीद के साथ एहलियान पाकिस्तान, एहलियान कराची और हैदराबाद, पहचानो इस शख्स को। ये वो शख्स है जो किसी को भी भेज सकता है। इनकलाब आएगा, ये फौजी बूट चाटने वाले कुत्ते हिसाब देंगे और हम हिसाब लेंगे हर उस कुत्ते से जो इस खाकी वर्दी वाले नापाक खंजीरों के बूट चाट रहे। वस्सलाम।